Today we will start our next chapter. Students, today we will start our next chapter, that is from mangoes around the world, around the year. Mangoes around the year. So, do you have your textbooks? आपकी बुक्स हैं आपके पास? Do you have your textbooks, students? Hello? I'm not getting any response from your side. Yes, Suryanshu Singh? Suryanshu? Harshit? Arya? Show me your Yes, textbooks. sir. Show me your textbooks. Good morning, sir. Open this chapter. Mangoes round the world. Year. Good morning. Mangoes around the year. Chapter number 4. Yes, sir. Today we will start this chapter. Okay. So open this page. Open this page. Lesson begins on the page number 35. ये चैप्टर आपका पेज नंबर 35 से शुरू होता है. Yes. If you have any okay. You all are ready? Notebook. Are you all ready? Yes, Your textbooks? Now, as the name of the chapter suggests, जैसा कि आप देखते हो चैप्टर का नाम ही हमें बताता है, mangoes around the year. Nowadays you are enjoying eating mangoes. आजकल आप लोग आम तो enjoy कर रहे हो, आमों को खा रहे हो आप? कितने लोगों को आम अच्छे लगते हैं? कितने लोगों को आम अच्छे लगते हैं? सुग्यांशु, अर्णव, अभिमान, do you like mangoes? सर मुझको आम अच्छे लगते हैं आपको? ओके. तो क्या आप लोग चाहते हो कि आम आपको पूरे साल खाने को मिले? कैसा लगेगा? पूरे साल आपको आम खाने को मिले? How would you feel if you get the opportunity to eat mangoes whole year? अगर पूरे साल आम खाने को मिले तो आपको कैसा लगेगा? हाँ? आयुष त्रिपाठी? अच्छा नहीं लगे. Would you like to eat mangoes whole year? Yes, sir. हाँ? Yes, sir. Very good. Yes, sir. तो कैसे खाने के लिए मिलेगा? Is it possible? क्या ये संभव है कि आमों का टेस्ट हमें पूरे साल मिलता रहे? No, sir. नहीं पॉसिबल है. But after reading this chapter, after understanding this chapter, you will be able to enjoy the mangoes around the year, for the whole year. अगर आप इस चैप्टर को ध्यान से सुनोगे, पढ़ोगे, समझोगे, तो आप आमों का स्वाद पूरे साल ले सकते हो. Now tell me, are you ready to listen? Hello. सार्थक, अंचल, Suryanshu, Namya, these all students are not visible on the screen. ये सब मुझे स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहे हैं. कौशल, चलिए, तो आज हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से आमों के स्वाद को पूरे साल एंजॉय कर सकें. ओके, it would be a great fun for us if we get opportunity to eat mangoes during the whole year. पूरे साल अगर हमें आम खाने के लिए मिले तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अब देखो बच्चों, आप ये जान लो कि आम हमें पूरे साल खाने के लिए क्यों नहीं मिल पाते हैं. हम उन्हें प्रिजर्व करके उन्हें रखें अपने पास, आमों को स्टोर करके रखें तो वो क्या होते हैं? खराब हो जाते हैं ना. They get spoiled. क्या हो जाता है? आम खराब हो जाते हैं. तो हमें एक ऐसी टेक्निक ढूंढनी पड़ेगी जिससे हम आमों को खराब होने से बचा सकें, है ना. We have to find a technique
टू प्रिजर्व मैंगोज, मैंगोज को सुरक्षित रखने के लिए हमें एक टेक्निक ढूंढनी होगी अगर हम आमों का स्वाद पूरे साल लेना चाहते हैं तो। Isn't it? ऐसा है कि नहीं है? तो पता है तो बलिया में कोरोना से 7 लोगों की मौत हो गई। Okay, we will discuss on this topic later. और जो तुम ऐप डाउनलोड किए वहीं पे देखो, आओ ये देखो। Students, I request you to please maintain silence around you. इसी पे रोज आता है। आप लोग अपने चारों तरफ थोड़ा सा अपने आसपास शांति बनाए रखो, so that your classes should not disturb. Okay. It's a humble request to the parents also. If they are listening me, they should try to maintain silence. थोड़ा सा बच्चों के आसपास शांति रहने दें। Okay, students, come to the point. In this chapter, mangoes around the year, we will try to find a technique to preserve mangoes to enjoy their taste during the whole year. Okay. Now let us see why the things spoil. चीजें खराब क्यों हो जाती है? जो भोजन सामग्री है जिनको हम अपने पास वो खराब क्यों हो जाती है, और जो खराब हो जाती है उनको हम पहचानेंगे कैसे? ओके, तो पहले तो ये पहचानना जरूरी है कि कौन सी चीजें खराब हुई हैं, फिर हम उनको खराब होने से बचाने के तरीके ढूंढेंगे और तब जाकर के हम मैंगोज के को एंजॉय कर पाएंगे पूरे साल। ओके, so let us see your chapter. Look at your chapter. Here you can see some students, they are talking to each other. Here in your textbook some students are talking to each other. If you have your textbook, look there, and if you don't have, listen to me. Here Neetu is saying, wow, Aman's lunch box has sweet puris. नीतू क्या कहती हैं? अमन के लंच बॉक्स में तो पूरियां हैं, स्वीट पूरियां, है ना? और अमन क्या कहते हैं? हे, टुडे नीतू हैज गॉट पोटैटो सब्जी। और अमन क्या कहते हैं कि नीतू हैज गॉट टुडे पोटैटो सब्जी। आज तो नीतू पोटैटो की सब्जी लाई है ना? तो अमन क्या लाए हैं? स्वीट पूरी। और नीतू क्या लाई है? आलू की सब्जी। अब प्रीति क्या कहती है? आई हैव गॉट भिंडी, मेरे पास भिंडी है, भिंडी की सब्जी। Isn't it? I have good memory. Now, Neetu, Aman and Preeti, they both are sharing their feeling here. Oh Neetu, I think your potato sabji is spoiled. अब नीतू क्या कहती है? अमन कहता है, he is saying, oh Neetu, I think your potato sabji is spoiled. अमन नीतू से कहते हैं कि मुझे लगता है कि आपकी जो आलू की सब्जी है खराब हो गई है। आपकी आलू की सब्जी खराब हो गई है। किसने कहा? Who said? सूर्यांशु? Who said that your potato sabji is spoiled? Anybody? Harshit Gupta? लेसन तो पता रहे। किसने कहा? अमन ने कहा ना। देखो अमन के ऊपर, यस सर, अमन के ऊपर जो सर्कल बना है उसका इंडिकेशन किधर है? अमन की तरफ है ना। और वो आवाज, वो बातें कौन कह रहा है? अमन कह रहा है। किससे कह रहा है? नीतू से। नीतू, आई थिंक योर पोटैटो सब्जी इज स्पॉइल्ड। क्या कहा अमन ने नीतू से? आई थिंक, मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है, दैट योर पोटैटो सब्जी इज स्पॉइल्ड। स्पॉइल्ड मीन्स खराब हो जाना। हाँ, खराब हो जाना। म्यूट कर दीजिए, आवाज बहुत। ओके, नाउ लिसन इट। तो अमन ने क्या कहा? नीतू, मुझे लगता है कि आपकी पोटैटो की सब्जी जो है वो खराब हो चुकी है। अब प्रीति क्या कहती है? डोंट ईट दैट, डोंट ईट दैट स्पॉइल्ड फूड। वो खराब हुआ भोजन आप मत खाइए। जो भोजन स्पॉइल हो जाए उसे हमें खाना चाहिए?
Should we eat the spoiled No, food? sir. No. Okay. So that is here saying Preeti, don't eat that. आप उसे मत खाइए. You may fall sick. Otherwise, what will happen if you eat spoiled food? अगर आप खराब भोजन खाओगे तो क्या होगा? You may fall sick. You may fall sick. आप बीमार हो. SICK. Sick. बीमार हो जाएंगे. बीमार हो जाना. तो किसने कहा? प्रीति ने. प्रीति ने क्या कहा? Don't eat that. उसे मत खाओ. You may fall sick. आप बीमार हो सकते हो. Here you take some भिंडी. आप थोड़ी सी भिंडी की सब्जी ले लो, है ना? प्रीति ने नीतू से क्या कहा? You take some भिंडी. थोड़ी सी भिंडी की सब्जी आप ले लो, इससे आप खा लो. Don't eat your spoiled vegetable of आलू. Spoiled आलू की सब्जी. Isn't it? ऐसा है कि नहीं है? तो देखिए, जहां इन लोगों ने, इन बच्चों ने आपस में जो बातें की, जो इनके बीच में डिस्कशन हुआ, उससे हमें क्या पता चलता है कि हम कुछ खराब भोजन सामग्री को देख करके भी पहचान सकते हैं. पहचान सकते हैं या नहीं? कौन सा भोजन खराब है या अच्छा है, क्या ये हम देख करके, स्मेल करके पहचान सकते हैं? इज इट पॉसिबल? दिव्यांशु, इफ इट्स पॉसिबल रेज योर हैंड. आयुष, Harshit, is it possible to recognize if the food is spoiled or not? क्या हम पहचान सकते हैं कि भोजन स्पॉइल हुआ है कि नहीं हुआ है देख करके? हाँ, नहीं पहचान सकते? पहचान सकते हैं बेटा. अभी देखो, अभी यहाँ पे किसने कहा था ये आई थिंक योर फूड इज, योर आलू की सब्जी इज स्पॉइल्ड? हाँ, किसने कहा था? अमन ने कहा था ना नीतू को, आई थिंक योर पोटैटो सब्जी इज स्पॉइल्ड. याद है आपको? देखिए अपनी बुक में फर्स्ट पेज पे ही दिया हुआ है. ये देखिए अमन क्या कह रहा है. अमन यहाँ क्या कह रहा है? हाँ, कैन यू रीड? ओ नीतू, आई थिंक योर पोटैटो सब्जी इज स्पॉइल्ड. ये कौन कह रहा है? अमन कह रहा है ना. ये देखो, ये अमन है ना? ये कह रहा है. हाँ, अमन इज सेइंग, नीतू आई थिंक योर पोटैटो सब्जी इज स्पॉइल्ड. ओके. तो बच्चों, हम भोजन सामग्री को देख करके पहचान सकते हैं कि वो स्पॉइल्ड है, खराब है या नहीं है, वो खाने योग्य है कि नहीं है, जैसे कि अमन ने पहचान लिया. नाउ हियर इज डिस्कशन फॉर यू आल्सो. हाउ डिड अमन नो दैट द पोटैटो सब्जी हैड गॉट स्पॉइल्ड? अमन को कैसे पता चला कि पोटैटो की सब्जी स्पॉइल हो गई है, खराब हो गई है? कैन यू टेल मी? क्या आप बता सकते हो मुझे? अमन को कैसे पता चला कि आलू की सब्जी खराब हो गई है? आप किसी खराब भोजन को कैसे पहचानते हो? हाँ, कई बार आपने देखा होगा ब्रेड को या हाँ हाँ बोलो. यस. Have you ever observed white particles on some food items which are kept for long time? अगर कुछ भोजन रख दिया जाए तो उसके ऊपर कई बार सफेद सफेद से कण दिखाई देने लगते हैं, जिनको हम फंगस कहते हैं. Sir, by smelling. Yes, by smelling you can also recognize, but you can also recognize the food by seeing also. देख करके भी आप पता लगा सकते हो, और देखते हो उसके ऊपर कई बार फंगस दिखाई देते हैं, सफेद सफेद. देखा है कभी? आपने ऑब्जर्व किया है? चलो हम लोग यहाँ आगे देखेंगे अभी. Have you ever seen some food that has got spoiled and how did you know that it was spoiled? तो कभी आपने देखा है भोजन कोई जो खराब हो गया हो? हाँ, कभी आप खाने की जिद करते हो, आपकी मम्मी कहती है कि नहीं नहीं इसको मत खाओ, ये खराब हो चुका है. ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? तो कैसे पता चला कि वो भोजन खराब हो गया है, वो खाने लायक नहीं है? बिकॉज ऑफ इट्स स्मेल, है ना? एंड बिकॉज ऑफ and the fungus which are visible on the top layer of the food.
है ना? यस, कई बार फंगस दिखाई देते हैं। प्रीति टोल्ड नीतू नॉट टू ईट पोटैटो सब्जी। प्रीति ने नीतू को कहा कि आप पोटैटो की सब्जी मत खाइए। What would have happened if she had eaten it? बताओ आप, अगर नीतू ने उस आलू की सब्जी को खा लिया होता तो क्या होता? प्रीति ने मना किया ना कि आप आलू की सब्जी मत खाओ, तो अगर नीतू ने खा लिया होता तो क्या होता? Anybody? If she had eaten it, हाँ, it was ill. If she had If eaten it, she was eaten it, it was ill. yes. After eating the spoiled food, someone may fall sick. अगर कोई खराब भोजन कर ले तो वो बीमार हो सकता है। Isn't it? Now turn your page. Page number 36. Turn your page. 36. अपना पेज पलटिएगा, आप 36 नंबर पेज पे आ जाइए। Yes, sir. Now look here. Here is some exercise and you have to write it. Are you all ready with your pencils? Yes, sir. चलिए देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं, पहले डिस्कस करते हैं। Look in your kitchen and write down names of the food items that can get spoiled in 2 to 3 days. क्या आप बता सकते हो कि आपके किचन में वो कौन सी चीजें हैं जो 2-3 दिन रखने के बाद खराब हो जाती हैं? ऐसा कौन सा भोजन है, भोजन सामग्री है जो आप पकाने के बाद 2 या 3 दिन के बाद नहीं खा सकते हो? कुक्ड राइस, अगर पका हुआ चावल है तो क्या आप 2-3 दिन बाद उसको खा लोगे? No, sir. चपातियां, कैन यू ईट चपाती आफ्टर 2 or 3 days? एनीबॉडी? एहसास? चपाती। हाँ, रोटियों को आप खा सकते हो पेंसिल हो यही में 2-3 दिन बाद। अभिमन्यु सिंह, कैन यू ईट चपाती आफ्टर 2 or 3 days? हाँ, नहीं खा सकते ना हम। No, sir. We cannot eat, है ना? We cannot eat cooked rice, दाल, चपाती 2-3 दिन बाद हमें ये हमारे लिए ये खाने योग्य नहीं कह जाती हैं, है ना? Can be kept for a week. और ऐसी चीजें बताइए जो 1 हफ्ते तक के लिए रखी जा सके, जिनको आप पकाने के बाद 1 हफ्ते बाद भी खा लो। शुगर। हाँ, शुगर। शुगर, ओके, शुगर अभी। और कोई चीज, और कौन सी चीज है जो आप 1 हफ्ते बाद खा सकते हो? कैन यू गैस? हाँ बोलिए। आदर्श कुमार, आयुष पांडे, तो बहुत सारी चीजें जो है 2-3 दिन के अंदर ही खराब हो जाती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लॉन्ग टर्म तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं, उनको खा सकते हैं, जैसे कि पिकल्स, अचार, है ना? यस सर। अचार तो हम कई बहुत दिनों तक खाते हैं। हाँ, एक बार बन जाए। गुजिया, होली के दिनों में जो गुजिया बनती है, डू यू रिमेम्बर? यस। और कई ऐसे पकवान भी होते हैं जिनमें पानी की मात्रा कम होती है, जैसे हम लोग का एक पकवान है ठेकुआ, जिसको हम कहते हैं, जानते हो आप? खाया, किसी ने टेस्ट किया है? स्वीट रोटी जिसको कहते हैं। हाँ, हाँ, तो उसको हम 1 हफ्ते बाद खा सकते हैं ना? और कुछ चीजें ऐसी होती है जो महीनों तक खराब नहीं होती हैं, would not spoil till a month, जैसे कि अचार। तो कुछ चीजें तो हफ्तों तक चल जाती हैं, कुछ महीनों तक भी चल जाती हैं। Isn't it? ऐसा है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir.
नाउ लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट एंड डिस्कस इन द क्लास। अब आप लोग भी आपस में इस तरह से चर्चा कर सकते हो, अलग अलग चीजों को, अलग अलग फूड आइटम्स को फाइंड आउट कर सकते हो, कौन सी चीजें दूसरे दिन ही खाने लायक नहीं रह जाती है, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हम एक हफ्ते बाद भी खा लेते हैं, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम कुछ महीनों बाद भी खा लेते हैं, वो खराब नहीं होती हैं। अचार गोजिया ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं ना हमारे आसपास। हाँ खाते हैं ना। हाँ बोलिए, is there any doubt? No sir. Okay. Now look at your friends list and discuss in the class. Will your list be the same in the season? What would change? And when food gets spoiled in your house, what do you do with it? और जब आपके घर में फूड भोजन स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है, तो आप उसके साथ क्या करेंगे? What would you do if food gets spoiled in your home? At your home? Anybody? I will do that. आप क्या करते हो? अगर भोजन आपके घर पे खराब हो जाए तो आप क्या करते हो? I will throw away. Yes, you throw it in the dustbin. है ना? You throw it in the dustbin. Okay. Now, students, here we will perform an experiment to see, to check how the food gets spoiled. हम ये एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि कैसे जो है भोजन खराब होता है. Now look at the topic. Busy return the bread. टॉपिक क्या है? Busy return the bread. अब बिजी एक बच्ची है और वो ब्रेड जो है मार्केट से खरीद के लाती है और फिर वापस उसको रिटर्न कर देती है, लौटा देती है. What is the reason behind it? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण क्या है वो हम जानेंगे. Okay? Yes sir. Okay. So let us see. What is there? Aman's Biji went to the market to buy bread. अमन की बिजी कहाँ गई? मार्केट गई ब्रेड खरीदने के लिए. ठीक है, बिजी कहाँ गई? मार्केट गई ब्रेड खरीदने के लिए. The shop was very crowded. दुकान पर बहुत ज्यादा भीड़ थी. It was very crowded. Who is listening, sir? Yes, बोलिए. The Listen. shopkeeper picked up a packet of bread and gave it to Busy. अब दुकानदार ने क्या किया? एक ब्रेड का पैकेट उठाया और वो बिजी को पकड़ा दिया. And gave it to Busy. She looked at it and returned it immediately. अब बिजी ने जैसे ही उस ब्रेड के पैकेट को देखा, उन्होंने तुरंत उसको लौटा दिया. She returned it immediately. Immediately means Shweta Chaube, what is the meaning of immediately? At once, तुरंत. Immediately means at once या तुरंत. Don't switch off your camera. अपने कैमरा को आप स्विच ऑफ मत कीजिए, आने दीजिए अपना फेस. ओके, इन स्कूल यूनिफॉर्म इट्स रियली गुड, है ना? तो सभी को इस तरह से तैयार होकर के बैठना. वेरी गुड श्वेता, यू आर सिटिंग प्रॉपर्ली टू अटेंड योर क्लास, टू अटेंड योर लाइव क्लास. वेरी गुड. So, Aman's Biji returned the bread immediately at once to the shopkeeper. Okay. Look at the picture of the bread packet here and guess why Busy returned it. अब यहाँ जो ब्रेड का पैकेट दिया हुआ है जरा उसको आप देखिए और आप समझने की कोशिश कीजिए कि उसे क्यों बिजी ने तुरंत रिटर्न कर दिया. ये देखिए, ब्रेड का पैकेट दिखाई देगा आपको. पैकेट ऑफ द ब्रेड. फर्स्ट थिंग इज दैट इट इज नॉट सील्ड. पहला तो ये है कि पैकेट सील्ड नहीं है, इट इज ओपन, इजंट इट? और भी चीजें देखते हैं क्या है इसमें प्रॉब्लम. How did she find that the food had got spoiled?
और कैसे उन्हें पता चला कि जो भोजन है वो खराब हो चुका है। ब्रेड पे, इस ब्रेड के पैकेट पे कुछ व्हाइट पार्टिकल्स भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना? So it is also a clue to recognize if the food is spoiled or not. Now let us see, find out. Look carefully at 2 to 3 packets of the food item. आप भी 2-3 food items के packets को check कीजिए, and what can we know from what is written on the packet? और देखिए कि उस पैकेट पर क्या लिखा हुआ है। When you buy anything from the market, what do you look for the packet? For on the packet. जब आप मार्केट से कोई फूड आइटम खरीदते हो तो उस पैकेट के ऊपर कुछ चीजें लिखी रहती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसकी प्राइस, है ना, और वो कितने समय तक यूज किया जाता है, ये सारी चीजें उसके पैकेट के ऊपर लिखी होती हैं। Have you ever seen? क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है बच्चों? Which lesson, sir? Hello. It's page number 36. Yes, sir. Page number 36. Mangoes round the ear. Page number 36. Mangoes round the ear. Okay. हम लोग पेज नंबर 36 को कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर है मैंगोज अराउंड द ईयर। तो आपने देखा कि विजय ने जैसे ही पैकेट को लिया उन्होंने उसको वापस इमीडिएटली लौटा दिया, तुरंत लौटा दिया। और इसके पीछे क्या कारण था? आप भी किसी पैकेट को देख करके जान सकते हो कि वो पैकेट यूज करने लायक है या नहीं है। और आप कैसे जानोगे? कैसे जानोगे? Which class, sir? आप जब पैकेट को देखोगे, अपने हाथ में लोगे, तो उसके ऊपर कुछ मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है, उसके ऊपर एक्सपायरी डेट्स मेंशन होती है, उसके ऊपर उस चीज की कॉस्ट मेंशन होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। तो आपको चीजें खरीदते समय इस बात का कि आप एमआरपी जो है, एमआरपी मींस मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिस पर एक विक्रेता अपनी किसी वस्तु को मैक्सिमम मूल्य से ज्यादा पर नहीं बेच सकता। तो अगर कोई आपसे डिमांड करे एमआरपी से ज्यादा अमाउंट लेने की, तो आप बिल्कुल मत दो उसे और मना कर दो कि देखो इसकी एमआरपी इतनी है, मैं इससे ज्यादा पैसे आपको नहीं दे सकता हूं, आप उससे कम दे सकते हो। You have right to bargain. आपके पास मोल भाव का अधिकार है, आप बार्गेनिंग करके उससे चीजों की कीमत कम करवा सकते हो, बट नेवर पे मोर देन द एमआरपी मेंशन्ड इन द पैकेट। जिस पैकेट के ऊपर एमआरपी जितना दिया हुआ उससे ज्यादा आपको पे करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो अगली बार जब आप कभी दुकान पे जाओ तो चीजों के पैकेट पर एमआरपी जरूर आप चेक कीजिएगा। चेक करोगे आप लोग? हाँ, तेज बहादुर, विल यू चेक? आप जब चीजें खरीदने जाओगे, आप मार्केट जाते हो, Yes, बाजार जाते हो, नजदीक की दुकान पर? हाँ, किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। न्याशा, दुकान पे जाते हो चीजें खरीदने? पहले जाते थे, अभी। अच्छा, अब नहीं जाते हो ना? ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड यू आर नॉट गोइंग, ठीक है। लेकिन जब सिचुएशन, अच्छी बात है, लेकिन जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाए और जब आप जाओ तो आप क्या सावधानी रखोगे? आप उन चीजों के पैकेट को जो लिखा है एमआरपी, उसको चेक करोगे? एमआरपी चेक करेंगे और एक्सपायरी डेट। बताओ ये हो। आप चीजों की एमआरपी चेक करोगे या नहीं करोगे? करेंगे सर, करेंगे। हाँ, और कोई आपके एमआरपी से ज्यादा कॉस्ट मांगे तो आप पे करोगे उसको? नो सर, नो सर। You should not pay more than the MRP. Okay? ओके सर। और क्या देखोगे आप उस पे? और उस पैकेट पे आप क्या चेक करोगे? एक्सपायरी डेट। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वो चीज कब बनी है? यस सर। उसकी एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी डेट आप चेक करोगे? यस सर। है वो
अगर उसकी एक्सपायरी डेट क्रॉस हो चुकी है तो आप उस चीज को खरीदोगे? बोला था क्या? No, sir. You should not buy. No, sir. अगर एक्सपायरी डेट क्रॉस हो चुकी है तो आप उस चीज को नहीं खरीदोगे, है ना? No, sir. नहीं खरीदेंगे। नहीं तो आपके लिए वो नुकसानदायक हो सकती है, वो आपको फायदा देने की जगह नुकसान कर सकती है ना? So these are some clues. These are some hints to buy the things from the market. अगर मार्केट से आपको कभी चीजें खरीदने का मौका मिले तो आप इनका जरूर ध्यान रखिए। Yes, sir. Now students, look at the page number 37. यहाँ देखिए पेज नंबर 37 पर। Can you see this piece of bread? क्या आपको ये ब्रेड का पीस दिखाई दे रहा है? Yes, sir. What is special in this bread? हाँ इस ब्रेड के पीस में क्या विशेषता है? देखो आपने कौन पढ़ावा था। इस ब्रेड के पीस में क्या विशेषता है बेटा? कुछ अलग चीज दिखाई दे रही है आपको? Yes, sir. What is Yes, it? sir. क्या अलग है? क्या अलग है बताइए? Not sound clear. आप मुझे ये बताइए कि इस ब्रेड में क्या विशेषता है, क्या अलग है सामान्य ब्रेड से? ये क्यों अलग है? सर सड़ चुका है। सड़ चुका है ना? कैसे पता चला बेटा? It is spoiled, of course. ब्लैक हो गया है। हाँ, ब्लैक स्पॉट्स इस पे दिखाई दे गए हैं, ब्लैक एंड ब्लू स्पॉट्स दिखाई दे गए हैं ना? इट मींस इट हैज स्पॉइल्ड, ये खराब हो चुका है, ये खाने लायक नहीं है, इट इज नॉट सुटेबल एंड इफ समवन विल ईट इट दे फॉल सिक। अगर कोई इसे खा ले तो वो बीमार पड़ सकता है, ऐसा है पड़ कि नहीं सकता है ना? So we should not eat that type of bread. Now how does food get spoiled? अब भोजन जो है कैसे खराब हो जाता है? Let us see. Yes, sir. The whole class can do this experiment together. आप सब लोग इस समय घर पे ही हो तो ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. You have a good opportunity in this lockdown period. What do you have to do? Listen it here. Take a piece of bread or roti. आप एक ब्रेड का या रोटी या एक टुकड़ा ले लीजिए. Okay. And sprinkle a few drops of water on it. और उसको थोड़ा सा पानी से गीला कर दीजिए, पानी छिड़क दीजिए उसके ऊपर. क्या करोगे आप? Yes, sir. वाटर ड्रॉप्स स्प्रिंकल कर दोगे. You will sprinkle water on that piece of bread or roti, whatever you have. कोई जरूरी नहीं कि आप ब्रेड ही लोगे, रोटी भी ले सकते हो आप. And put it in a box. Yes, sir. और उसको आप एक बॉक्स में रख दीजिए. Okay. And close the box. बॉक्स को आप बंद कर दीजिए. ठीक है? And see the bread or roti every day. और उसको आप रोज चेक कीजिए. Until you find some changes on it. और उस ब्रेड को और रोटी को आप रोज ऑब्जर्व कीजिए और जब भी आपको कोई चेंज दिखाई दे तो वो चेंज आपको नोट करना पड़ेगा. एक टेबल बनानी पड़ेगी. As you have seen on your book, जहाँ आपको बुक में वो टेबल दिखाई देता है, उस तरह का एक टेबल भी आप बनाओगे. Okay, sir. इस टेबल में आप अपनी ऑब्जर्वेशन Yes, को sir. नोट करोगे. ओके? तो Yes, आज आप लोग sir. घर पे हो, जैसे ही क्लास Okay, खत्म sir. हो, आप एक रोटी का टुकड़ा या एक ब्रेड का टुकड़ा लीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़किए और एक बॉक्स में बंद करके रख दीजिएगा. और कल से आप ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए उसको. Okay, sir. ओके? एंड यू हैव टू राइट योर ऑब्जर्वेशन ऑन दिस टेबल. इन दिस टेबल आप इस टेबल में अपनी ऑब्जर्वेशंस को नोट करोगे. इज दैट क्लियर? चलिए, मेक दिस टेबल ऑन अ चार्ट पेपर और इन अ कॉपी एंड पुट इट इन द स्टडी टेबल or in the classroom where you used to study. Fill up the chart every day after discussing the changes seen. और उस ब्रेड में या फिर उस रोटी में आपको जो भी चेंज दिखाई देती है वो आप रोज नोट करोगे. यहाँ देखिए आपको 6 डेज यहाँ पे मेंशन किए गए हैं. 6 दिन तक आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस को नोट करना है. पहले कॉलम में क्या दिया गया है? बाय टच, छूने से आपको उस पीस ऑफ ब्रेड में किस तरह की चेंजेस दिखाई देती हैं. बाय स्मेल, स्मेल में किस तरह की चेंजेस आती हैं. बाय लुकिंग थ्रू हैंड लेंस, और आप हैंड लेंस का भी यूज कीजिए, उससे देखिए
कि हैंड लेंस से जब आप चेक करते हो तो जब आपने रखा था गीला करने से पहले वो कैसा दिखाई देता था, और उसके बाद पर डे उसमें कैसी चेंजेस आती गई, और फिर उसके कलर्स में किस तरह की चेंजेस आती हैं. ओके, so you have to observe it from the different angles, by touching, by smelling, and by looking through the hand lens, by observing the color of the food. Okay, Yes, so will you do it at your home? You can take help. You may take help of your parents also. आप इस एक्सपेरिमेंट में अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हो. आपके घर पे जो भी बड़े एल्डर्स हो, आपके ब्रदर सिस्टर्स Yes, हो, sir. आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो. ओके, while writing the observation. So this is your homework. Do this activity at your home, and we will discuss remaining part in our next class. Okay, our next class will be on Monday. So students, be ready with this observation table. आप लोग इस observation table के साथ तैयार कीजिएगा. Okay. Hello. Hello. Kaushal, are you listening? Yes, sir. So, Yes, sir. will you prepare this observation table? आज कौन सा दिन है? आज थर्सडे है, और अगली Yes, sir. मंडे को. You have Friday, Saturday, Sunday, 3 days in your hand. You have Friday, Saturday, and Sunday. You have 3 days in your hand. You can also note down the observation on Monday also. So 4 days observation you can write on the table. Okay, अपने टेबल में 3 days. आज आप ब्रेड के पीस को वाटर स्प्रिंकल करके रख दीजिए बॉक्स में, और फिर कल से आप ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना शुरू कीजिए. Okay. Okay, sir. And we will discuss about your observation on the Monday. On Monday in our next class. Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. So if you have any doubt, you may ask. No, not picture. Huh? No, sir. No doubt. No doubt. No doubt. You all are very intelligent. You never have any doubts. Okay, sir. But don't hesitate if you have any. Okay? शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है. अगर कोई